we cut across to these latest pictures coming in from Patna. There you see Ashok Gehlot and Tejasvi Yadav in the frame already, and heavy media contingent there listening with keen ears to what the Mahagathbandhan has to say. Amid news of the growing rift between the Mahagathbandhan, and especially in the latest how Rahul Gandhi has been erased in the poster, the Congress clearly sensing red. But will they be as vocal in this press conference? All right, this is coming at a very crucial time because they have been touting it as a friendly fight so far on a couple of seats. But the Mahagathbandhan says they're very much together, does not seem like to how the reality is brewing on the ground. Let me cut across to my colleague Piyush Mishra, who's been getting us the latest. Piyush, just minutes for the press conference to begin and everyone waiting keenly to hear what they have to say. Because Pappu Yadav in the Congress, where he said that there is a need for Rahul Gandhi for backward votes, and Rahul Gandhi being erased from the poster. What really is happening, especially between the RJD and the Congress, and what is expected in this news conference? Piyush. Well, Suesha, all the leaders of Mahagathbandhan have now arrived on the stage. Tejasvi Yadav, Mukesh Sahni, Dipankar Bhattacharya, they have now arrived here. Ashok Gehlot from Congress Party is also here, and very soon we will see the press conference also. You can see the live visuals of these leaders who are now sitting on the stage, and they are going to begin the press conference very soon. So it is going to be a huge press conference where Mahagathbandhan is now doing its press conference for the very first time. A joint press conference is now taking place at Suesha, where the leaders are sitting on the stage. And Manoj Jha, who is RJD MP, is now coordinating. He is holding mic, and he is also requesting media to settle down as they are going to begin the press conference very soon. Remember that this press conference is taking place at a very critical time when there are a lot of talks of some sort of rumblings in Mahagathbandhan. But the controversy is also taking place is that on this backdrop which we are right now showing Tejasvi Yadav's photograph is there. There is only one photograph, and that is of Tejasvi Yadav, and that has now created a lot of confusion because there is no photograph of any other leader. Though we are seeing leaders from Congress, from VIP, from left sitting here on this stage, they are also going to do a press conference, but their photographs are not on this poster, which has now created a lot of controversy. BJP is now questioning this entire move, saying that this shows that Mahagathbandhan is on the verge of collapse. But on the other side, Suesha, we are also seeing how the leaders of Mahagathbandhan have now gathered here. What is more interesting here, you can see, I would ask my video analyst to zoom on Tejasvi Yadav. He is sitting with the symbol of Lalten on, pasted on his kurta. This shows that there is only one man who has come with his symbol. Apart from that, we are not seeing any other leader of Mahagathbandhan to show their symbol. So only Tejasvi Yadav is seen putting the symbol of RJD on his kurta. This is signifying that just only one symbol is there in this press conference. And now, as we are speaking, the press conference has now begun. IP Gupta of Mahagathbandhan is now addressing the press conference. Yes, absolutely, Piyush, and we totally sense the chaos there because everyone is waiting to hear from what exactly is the position of the Mahagathbandhan. They have been saying that they are united, they are contesting the elections with strength. Let's listen. जिम्मेदारी है कि जो तांती तत्वा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं. इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लगा हुआ हूं, और आप देखेंगे हर एक बूथ पे तांती तत्वापान समाज के 100% वोट ट्रांसफर होगा. इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं. आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांती तत्वा को पान समाज को सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है और मुझे बिठाया है, और तांती तत्वा पान समाज आपके इस काम के लिए एहसानमंद रहेगा जिंदगी भर. बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया आईपी गुप्ता जी. अब मैं आग्रह करूंगा सीपीएम के
हमारे ललन चौधरी जी अपनी बात रखें सॉलिडारिटी का। सभापति जी, तेजस्वी जी, तमाम गठबंधन के साथियों, आज आप चीज़ों को देखेंगे। प्रेस के भाइयों से हम कहना चाहते हैं, जो बिहार ने करवट बदला, बिहार ने एक संयुक्त लड़ाई खड़ा की। वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ने का एक बड़ा ही अनुभव बिहार के गठबंधन को है। बिहार को जिस संकट के दौर से ले जाने की कोशिश हुई, बिहार में जिस रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, देश के संपत्ति को केंद्र की सरकार ने जिस रूप से बेचने का काम किया, रेल, सेल, भेल, तमाम तरह के कंपनियों को इसने बेच दिया, सरकारी कंपनियों को बेचा और देश के बड़े संपत्ति को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ हैंड ओवर कर दिया। इसके खिलाफ बगावत का झंडा बिहार ने खड़ा किया है। हम आपको कहना चाहते हैं, बिहार बदलेगा, बिहार की दिशा बदलेगी और चुनाव का रिजल्ट इसी गठबंधन के साथ होगा और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं कॉमरेड राम नरेश पांडे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आग्रह करूंगा कि एकता का संदेश, एकजुटता का संदेश दें। प्रेस वार्ता में आए हुए प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के मित्रों, हमारे तमाम गठबंधन के नेतागण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। इस विश्वास के साथ हम महागठबंधन के प्रेस वार्ता में महागठबंधन के एकता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं आग्रह करूंगा वीआईपी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता मुकेश जी से कि वो एकता का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच 2 बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये
इंडिया गठबंधन के मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर।